Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read class 11th history, chapter 3. We had three continents. In this chapter, we are discussing about that Roman Empire. In my previous video, I have discussed the 3rd century crisis, gender, literacy, and culture. And before, I have already discussed about geographical condition of Mesopotamia and their political system, Senate, Senatorial Board, Augustus, Tiberius, and bonding with their state and military. We have discussed all. Today, I would like to explain you the economic expansion of Roman Empire. Dear student, no doubt to say that this is very important topic. There are the various questions put up here. This paragraph is important for your exam also. So you have to manually observe and study. Line by line you have to read. And it is more information given in this paragraph. You have to read and you have to think that expansion of Roman Empire behalf of their economy. So let's start with topic economic expansion. Economic expansion. The empire had substantial economic infrastructure of the harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. Wheat, wine, and olive oil were traded and consumed in huge quantity, and they came mainly from Spain and Gallic province, North Africa, Egypt, and to a lesser extent Italy, where conditions were best for these crops. The liquids like wine and olive oil were transported in the containers called amphora. The fragment and shared of a very large number of these survive. Monte Testico in Roman is said to contain in the remnants of over 50 million vessels, and it has been possible for the archaeologists to reconstruct the prices. Shape of these containers tells us what they carried and say exactly where they were made by examining the clay carried and say exactly where they were made, examine the clay content and matching the finds with clay pits throughout the Mediterranean. In this way, we can now say with some confidence that Spanish olive oil, to take just one example, was a vast commercial enterprise that reached its peak in the year 140 to 160. The Spanish olive oil of this period was mainly carried in container called Vessel 20. After the archaeologists who first established it from a find of Vessel 20 are widely scattered across sites in the Mediterranean. This suggests that
Spanish olive oil circulated very widely indeed. By using such evidence, the remains of amphora of different kinds and their distribution maps, archaeologists are able to show that Spanish producers succeeded in the capturing markets for olive oil from their Italian counterparts. This would only have to happen if Spanish producers supplied better quality olive oil or lower price. In other words, the big landowners from the different regions competed with each other for control of the main markets for the goods they produced. The success of Spanish olive growers was then rapidly of North African producers. Olive excuse me, sorry. Mm. Sorry. The regions competed with each other control of the main markets for the goods they produced. The success of the Spanish olive growers was the repeated by North African producers. Olive states in this part of the empire dominating productions through the most of the 3rd and 4th centuries. Later, after 4 to 5, North Africans' dominance was broken by the East in the later 5th and 6th centuries. The Asian, Southern Asian Minor Turkey, Syria, and Palestine became major exporter of wine and olive oil, and containers from Africa showed the dramatically reduced presence on the material markets. Behind this broad movement, the prosperity of individuals, regions rose and fell depending on how effectively they could organize that production and transport of the particular goods, and on the quality of those goods. My dear student, first we have to explain this paragraph, and then after we have to go ahead. We will go ahead after explaining this paragraph. So, see this paragraph. The empire had the substantial economic infrastructure of the harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. अगर हम रोमन एम्पायर के आर्थिक विस्तार की बात करें तो ये विस्तार हमें काफ़ी बड़े क्षेत्रों में दिखाई देता है। साम्राज्य में बंदरगाह, इट मीन्स पोर्ट, खान, इट मीन्स माइंस, ब्रिक यार्ड्स, इट मीन्स ईंट के भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ, ओलिव ऑयल्स फैक्ट्रीज आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनमें उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, अंगूर से बनी शराब तथा ओलिव ऑयल मुख्य व्यापारिक मद थी, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांत, गैलिक स्टेट्स, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र
तथा अपेक्षाकृत कम से कम इटली से आती थी, जहाँ इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध थी। शराब, वाइन, जैतून, ओलिव ऑयल और अन्य लिक्विड जो पदार्थ की ढुलाई ऐसे कंटेनर में होती थी, ऐसे मटकों में होती थी जिसे एम्फोरा कहते थे। इन एम्फोरा, इन जो पार्ट हैं, इन एम्फोरा के बहुत सारे टुकड़े, कंटेनर्स के बहुत सारे टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक कंटेनर्स के अवशेष पाए गए, मटकों के अवशेष पाए गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से एक सही स्वरूप देने का प्रयास किया है, अच्छा से फीचर देने का प्रयास किया। और ये पता लगाने का प्रयास किया कि इन कंटेनर्स में क्या चीज़ ले जाया जाता रहा होगा, इन कंटेनर्स का इस्तेमाल, प्रयोग किसके लिए किया जाता होगा। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं में मिट्टी का भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रीजन का उपलब्ध चीनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें इसके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। जिस मिट्टी से वो कंटेनर्स बने हैं वो मिट्टी कहाँ की है, उसके आधार पे कंटेनर्स की एग्जैक्ट लोकेशन, ये कहाँ से बनी है और कहाँ से चली है, इसकी पूरी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी ही सावधानी से देने का प्रयास किया। इसके अलावा स्थल का मालूम पता चल जाने के बाद उनके बारे में जानकारी मिली, और इस प्रकार हमें कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल निकालने का इंडस्ट्री डेवलप हुई थी 140 टू 160 सी के आसपास। कह सकते हैं कि हम जस्ट एग्जाम्पल was a vast commercial enterprises that reached its peak in this year 140 to 160. The Spanish olive oil of this period was mainly carried in the containers called Dressel 20. 140 to 160 सी के बीच बड़े पैमाने पर ओलिव ऑयल इन कंटेनरों में भर के भेजी जाती होगी, और इस कंटेनरों को ड्रेसल 20 का नाम दिया गया। इसके बाद इसका ये नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पे, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया। हेनरिक ड्रेसल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन जो कंटेनर्स था उसको ढूंढा, उसके नाम, इसलिए उनके नाम से इस कंटेनर का नाम ड्रेसल 20 रख दिया गया, जिसमें ओलिव ऑयल ले जाई जाती थी। कहता है कि ऐसे प्रदेश बहुत सारे हैं जिससे ये कंटेनर पाए गए। ड्रेसल 20 नामक कंटेनर के अवशेष मेडिटेरियन रीजन में अनेक स्थलों से, अनेक आर्कियोलॉजिकल साइट से एक्सकवेट हुए, जिससे प्रतीत होता है, इससे पता चलता है कि स्पेन के ओलिव ऑयल का व्यापक एक्सपेंशन था। स्पेन में इसका व्यापक फैलाव था ओलिव ऑयल्स का। ऐसे साक्ष्य, ऐसे एविडेंस भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों से, एम्फोरा जो बर्तन मिले थे उनसे भी मिले, और उनके मिलने के स्थानों के आधार पे इनके एक्सपेंशन को समझा जा सकता है। जिस मिट्टी से बने हैं उस जगह की मिट्टी को भी हम यदि एक्सप्लोर करें, देखें, तो मालूम चलेगा कि कहाँ से चली थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। इन स्थानों के मिलने में इस बात पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको अच्छे से समझा और वो बता सके कि स्पेन के ओलिव ऑयल के जो उत्पादक क्षेत्र थे, अपने इटालवी जो कंपटीटर्स थे, उनसे ये ओलिव ऑयल का पूरा बाजार छीनने में कामयाब रह गए। मतलब ओलिव ऑयल के 2 कंपटीटर्स थे, एक स्पेन और एक इटली। पहले इटली था, बाद में स्पेन हुआ। स्पेन ने प्रोडक्शन को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद ओलिव ऑयल पे पूरा
आधिपत्य जमा लिया, पूरे ओलिव ऑयल मार्केट को कैप्चर कर लिया और उसमें सफल हुआ। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाला कच्चा ओलिव ऑयल मार्केट में लाया होगा। दूसरे शब्दों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का व्यापार बाजार हथियाने के लिए आपस में कंपटीशन करते रहे होंगे। इस बात का मैसेज मिलता है, सूचना मिलती है। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादक ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक को जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। अफ्रीका के उत्पादकों ने भी इस कंपटीशन में भागीदारी की और जल्दी ही उन्होंने स्पेन के बराबरी कर ली। ओलिव ऑयल के व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। और तीसरी थर्ड सेंचुरी तक आते आते फोर्थ सेंचुरी की शुरुआत में अधिकांश भाग में अफ्रीकी ओलिव ऑयल का बोलबाला हो गया। फिर 424 सी के आसपास पूर्व में उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। एंड लेटर फिफ्थ सेंचुरी और सिक्स सेंचुरी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन के व्यापारी अंगूर से बनी शराब तथा ओलिव ऑयल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागरीय बाजार मेडिटेरियन मार्केट में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में समृद्धि और वस्तुओं की गुणवत्ता और उत्पादकता परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है। ओलिव ऑयल और वाइन के आधार पर हम रोमन इकोनॉमिक एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑथर ने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से यहाँ से जो कंटेनर्स मिल रहे थे, पहले उन कंटेनर्स को खोजा। कंटेनर्स का नाम ड्रेसल 20 रखा गया, जिसमें ओलिव ऑयल ले जाई जाती थी, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पे थी, हेनरिक ड्रेसल के नाम पे उसको ड्रेसल कहा गया, ड्रेसल 20। मेटेरियल रीजन में आज भी ऐसे बहुत सारे टुकड़े इस कंटेनर्स के पड़े हैं, यत्र तत्र बिखरे मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के आधार पर इन कंटेनर्स के टुकड़ों को जोड़ के एक पूरे पार्ट को तैयार करने का प्रयास किया है। एक पूरा कंटेनर तैयार करने में सफलता प्राप्त की। दो चीज़ें क्लियर हुई। पहला तो कंटेनर में क्या ढोया जाता था, एक प्रश्न उठा, और दूसरा ये मिट्टी कहाँ की है, दूसरा प्रश्न। इसके एक्सप्लोरेशन से मिट्टी की एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से बनी थी, मेडिटेरियन रीजन से या स्पेन से या अफ्रीका से या फ्रांस से, उन प्रदेशों की जानकारी प्राप्त कर ली। फिर इसके इकोनॉमिक एक्सपेंशन में बात करते हैं कि जो ओलिव ऑयल्स थी उसके आधार पे समय समय पे टाइम टू टाइम अलग अलग प्रदेशों ने ओलिव ऑयल पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पहले इटली का पूरा प्रभाव था ओलिव ऑयल्स पे, फिर उसके बाद इटली के बाद अधिकार स्पेन ने कब्जा कर लिया। स्पेन के बाद अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चौथी, पाँचवीं, छठी सदी तक आते आते कई सारे देश ने, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन जैसे देशों ने शराब व्यापार पे या ओलिव ऑयल के व्यापार पे कब्जा कर लिया। इस तरीके से पूरा एक्सपेंशन हमें कई प्रांतों में दिखाई देता है। अब बात करते हैं, द एम्पायर included many regions had the reputation. The empire included many regions that had a reputation for the exceptional fertility. Campania in Italy, Sicily, the Fayum in Egypt, Galilee, Byzantium, Tunisia, Southern Gaul, called Gaul, Narbonensis, are wealthiest part of the empire. According to writers like Strabo and Pliny, the best kind of wine came from Campania. Sicily and Byzantium exported large quantity of
wheat of Rome. Galilee was densely cultivated. Every inch of the soil has been cultivated by the inhabitants, wrote his historian Josephus. And Spanish olive oil came mainly from the numerous estates found along the bank of the river, the Guadalquivir in the साउथ स्पेन. कहता है साम्राज्य में, एम्पायर में ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो असाधारण अपनी फर्टिलिटी के कारण जाने जाते थे, अपनी उर्वरता के कारण जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे इसके लिए. जैसे इटली का कंपेनिया, सिसिली, मिस्र के फयूम, गैलीली, बाइजैकियम, ट्यूनिसिया, दक्षिणी गाल, साउदर्न गाल, जिसे गैलिया नार्बोनेंसिस कहते थे, तथा बाइटिका, दक्षिणी स्पेन. धनी भागों में से कुछ थे, प्रॉस्परस थे, वेल्दियस थे. सबसे बढ़िया किस्म का जो अंगूर के बना शराब थी वो कंपेनिया से आती थी. कंपेनिया वॉज फेमस फॉर द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वाइन. सिसिली, बाइजेकियम, रोम की भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते थे. गैलीली में गहन खेती की जाती थी. इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच के टुकड़े पर खेती कर रखी है. और स्पेन का जैतून का तेल, स्पेन के जो ओलिव ऑयल है, दक्षिण में ग्वाडलक्विविर नदी के किनारे के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आती है. मतलब ये क्षेत्र वो थे जो फर्टाइल लैंड थे, जहाँ खेती की जाती थी. रोमन एम्पायर के खेती करने वाले क्षेत्रों में कैम्पेनिया, सिसिली, फयूम, गैलीली, बाइजेकियम, दक्षिणी गाल, बाइटिका जैसे प्रदेश महत्वपूर्ण थे. गैलीली में गहन खेती की बात जोसेफस कहता है कि एक एक इंच पे खेती कर रखी थी यहाँ के लोगों ने, मतलब फर्टाइल लैंड था. अभी हमने इकोनॉमिक इंस्पेक्शन में दो चीज़ें पढ़ी. पहला, हमने देखा कि किन किन वस्तुओं का ये लोग आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे. जैतून था, ओलिव ऑयल, वीट थी, वाइन थी. और अब दूसरी पार्ट में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी यहाँ दिखाई देता है. प्रदेशों के नाम आथर ने काउंट करा है. ये प्रदेश फर्टाइल लैंड थे, यहाँ पे खेती खूब की जाती थी. अब आगे देखते हैं. कहता है कि ऑन द अदर हैंड द लार्ज एक्सपेंशन ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन ए मच less advanced state. For example, transhumanism was widespread in the countryside of the Namibia, modern Algeria. The pastoral land, semi-nomadic communities were often on the move, carrying the oven-shaped mahats called the Mapali with them. As the Roman state expanded in North Africa, the pastures those communities were the drastically reduces and their movement more tightly regulated. Even in Spain, north was much less developed. The inhabitant legal, the largely by a cattle-speaking peasantry that lived in the hilltop village called Castella. When we think of the Roman Empire, we should never forget these differences. अब थर्ड पोर्शन को देखते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन में. पहले हमने ट्रेड को देखा, दूसरे पार्ट में हमने एग्रीकल्चर को देखा, तीसरे पार्ट में हम पास्चरस इंडस्ट्रीज को देखेंगे. यहाँ पे पशुपालन, ग्रेजिंग कैसे होती थी. कहता है कि रोम के क्षेत्र में अनेक बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे. उदाहरण, न्यूमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो ऋतु प्रवास होते थे, ट्रांसह्यूमनेंस होते थे, व्यापक पैमाने पर होता था. जो नोमैडिक पीपुल्स थे, जो चरवाहे थे, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे. अपने साथ ओवन आकार की झोपड़ियाँ, जिसे मैपालिया कहते थे,
उठाए इधर उधर घूमते रहते थे। वो मैपालिया को लेके एक स्थान दूसरे स्थान तक अपने पशुओं को लेके विचरण करते रहते थे। लेकिन अब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ। रोमन एम्पायर में स्टेट्स डेवलप हुए। वहाँ चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई और इस नोमैडिक जो ग्रेजिंग पीपुल्स थे उनकी आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। नॉर्दर्न स्पेन वॉज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली और उसके अधिकतर क्षेत्रों में कॉल्टिक भाषा किसानों ने की आबादी थी। जो कॉल्टिक भाषा बोलने वाले किसान थे जो नॉर्थ स्पेन में अधिकतर संख्या में थे, जिसका डेवलपमेंट कम हुआ था, निवास करते थे। जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इस असमानताओं को नहीं भूलना चाहिए। कहीं रोमन साम्राज्य में बड़े बड़े शहर हैं, विकसित हैं, कहीं रोमन साम्राज्य में गांव हैं, कहीं विरल पॉपुलेशन है। नॉर्थ स्पेन का एरिया तो बहुत ही कम लोगों का है, पहाड़ों पे कैस्टिला में रह रहे हैं लोग, कहीं नोमैडिक पीपुल्स हैं, कहीं खेती हो रही है। तो इस तरह की तमाम डाइवर्सिटी हमें इस रोमन एम्पायर में दिखाई दे रही है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। when we read this chapter, when we read this topic, we have to learn that there are so many diversity in the Roman Empire. Their economic expansion, as well as their agriculture, as well as their pastoral industry, was wide stretches on the whole Europe to Africa and Asia, three continents. Behalf of the trade, behalf of the pastoral industry, behalf of the agriculture, we can understand their इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम समझ सकते हैं। वी शुड आल्सो बी केयरफुल not to imagine that because this is the ancient world, the forms of cultural and economic life were necessarily backward or primitive, and the country diversified the application of water power around the Mediterranean as well as the advance in water power. The Spanish gold and silver mines and at the gigantic industrial scale on which those mines were worked in the first and second centuries with level of outputs that would not be the reachieved again till the 19th century. Some 1700 years later, the existence of Wall organized the commercial and the banking network, the widespread use of money are all the indications of how much we tend to underestimate the sophistications of Roman economy. This rise issue of labor and of the use of slavery. You should also be careful not imagine that because of this was the ancient world. हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हम यह न मान बैठे कि एक प्राचीन दुनिया थी। इसलिए इस समय के लोक सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन बहुत पिछड़ा था। लेकिन स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन यदि हम ध्यान दें तो हमें इस समय के लोगों का सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन आदि में पिछड़ा हुआ नहीं लगेगा। ये प्रिमिटिव ह्यूमन नहीं थे, इन्होंने एक डेवलप्ड कल्चर डेवलप कर चुके थे, एक व्यवस्था विकसित कर ली थी। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति की तरह तरह के प्रयोग से प्रगति हुई। इस काल में वाटर पावर से मिले चली प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति वाटर पावर के थ्रू खुदाई की जाती थी और पहले और दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे, मिनरल्स निकाले जाते थे। इस समय उत्पादकता का स्तर भी ऊंचा था।
19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को मिलते हैं जिसे सुगठित वाणिज्यिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है। बैंकिंग व्यवस्था के डेवलपमेंट से, धन के सर्कुलेशन से एक क्लियर एविडेंस मिलता है हमें, एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है हमें कि रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था, रोम की डेवलप्ड अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, जिसे हम कम आंकने की प्रवृत्ति कतई न करें। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना चाहिए, जो कि रोमन एम्पायर में महत्वपूर्ण थे। To discuss about that slavery system of the Roman Empire also, it played a very important role in the Roman culture. So we will discuss this rise of the issue, the labor and the use of slavery. We will discuss the use of slavery. We will discuss the situation of slaves in the Roman Empire in your next video. आज के लिए इतना ही, कल इसके बाद हम और चीज़ों पे बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।